I was born in a village which Mhm. is like 60 kilometers from Ranchi, with no roads, no electricity, no water. और हम लोग ओशन काउंटी हेल्थ डिपार्टमेंट में जाकर हर सैटरडे हर संडे को हजारों लोगों को कोविड का वैक्सीन दिया हम लोगों ने फ्री में। आपने लोगों को हेल्प करने का प्रयास जारी रखा। तो क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे? और इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी आप लोगों की हेल्प करने से कतराए नहीं? या मोटिवेशन तो हम सबको ये बोलते हैं कि इफ यू आर से डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा तो यही है कि गो इन योर टाउन एंड लुक फॉर पीपल हु नीड हेल्प देम आउट। Namaskar, hello, welcome back to Good Vibe Show. Today we are honored to have Dr. Avinash Gupta as our guest. Born into a farming family in a poverty-stricken village in Ranchi, Jharkhand, Dr. Gupta faced early adversity but pursued education diligently, becoming a distinguished cardiologist. In 1986, he moved to the United States, where he advanced in medicine, specializing in cardiology at sunny downstate Brooklyn, and has since served as the chief of cardiology at Monmouth Medical Center, Southern Campus in New Jersey. Despite his success abroad, Dr. Gupta's heart remains deeply connected to his roots. In India, in 2008, he founded the Dr. Avinash Gupta Foundation, providing scholarships and vital services to underprivileged children in Jharkhand. His leadership extends to initiatives such as the Pran Bajana Clinic in Ranchi and raising funds for medical relief during the COVID-19 pandemic. Recognized for his contributions, Dr. Gupta continues to impact both the Indian and American communities through his philanthropic endeavors. As the current president of the Federation of Indian Associations, Dr. Avinash Gupta continues to uphold and promote Indian values and culture among the Indian American communities in the Northeast USA. Join us as we celebrate Dr. Avinash Gupta's journey and his unwavering commitment to making a difference in both healthcare and philanthropy. Hello, Avinash ji. Welcome to Good Vibe Show. It's an honor to have you on the show today. Thank you, Vanna ji, for having me on the show. Thank you. So let's begin. Avinash ji, can you tell us about your early life in Ranchi, Jharkhand? आप एक किसान परिवार से हैं, so how was life then and how it changed your perspective on life and career? Actually, I come from a village. I was born in a village which Mhm. is like 60 kilometers from Ranchi, with no roads, no electricity, no water. And actually, my father became deaf the year I was born, and he moved to the village and took to farming. So we were 7 of us, and there were no good schools, no education, no primary care health center, no good health care. So I grew up in that kind of environment till grade 4 actually. Till grade 3 we had the school in our own village, but for grade 4 I had to cross a river to go to another village to study. Oh my God. Okay, I know आपका बचपन काफी मुश्किलों में बीता है and I've heard that you were also expelled from your school because आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं थे और रिवर पार करके जाना तो ये हमने सिर्फ कहानियों में सुना है कि पहले के जमाने में लोग नदी पार करके स्कूल जाते थे बट still what kept you motivated Avinash ji to become a doctor even after so many challenges? हाँ, तो स्कूल में जब बारिश होती थी तो छत छूने लगता था तो छुट्टी हो जाती थी और छुट्टी होने का एक दूसरा कारण भी था कि नदी भर जाएगी तो फिर नदी पार नहीं कर पाओगे तो चले जाओ घर। तो माय फादर had a friend, he was a deputy magistrate, he used to come to our village in a motorcycle, and when he saw us, he encouraged my father to build a house in the city so that we can get a good education there. So we came to the city in grade 5. And that's when I was expelled from my class because I didn't have textbook. And we used to walk, I remember 5 miles to go to the school. And I had to go back home walking and get the money and then buy the book and then come back to the class. My So, God. but the motivation to become a doctor came when in grade 9, so when I had to take biology or mathematics, then I took biology, and it interested me so much to learn about the human anatomy and the
disease processes that I decided at that time that I have to become a doctor. Plus, even at that time, I wanted to help other people get their pain and suffering away, and that gave me a lot of happiness. And ultimate goal of life is to be happy. Amazing. So, how did you manage to get admission in Rajendra Institute of Medical Science? Actually, the year before I got admission, the government started a competitive exam, and we had to go through that. And fortunately, I competed, and I got admission in my choice school, which is the Rajendra Institute of Medical Sciences in Ranchi, which is now Jharkhand. That time it was Bihar. Okay, great. So, Avinash ji, can you share about your early career in Jharkhand after you completed your medical studies? After completing my medical studies, I was waiting for Bihar government service because we had to serve in the rural areas for at least 2 years. So during that waiting time, because the government jobs were hard to get by, so I joined a heavy engineering corporation, HEC, in Ranchi as a medical officer, and worked there for a year. Then I came back to my alma mater, RIMS, to do a DTMH, which is Diploma in Tropical Medicine and Hygiene. And then that time we got a government job in Palamu district. The remote area was Leslie-Ganj block. And that was a life-changing appointment there with no accommodation and no good transportation. But I did go to उस समय काम करने का जो जज्बा था कि भाई डॉक्टर बने हैं, काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, तो मैं गया, रिमोट एरिया में भी गया और ऐसे ऐसे प्राइमरी केयर सेंटर में गया जहाँ कि आज तक कोई डॉक्टर नहीं गया था। तो काफ़ी अच्छा लगा। इट्स वेरी रिवार्डिंग एंड फुलफिलिंग टू take care of people who are in need and they cannot afford to go to the cities to take care of their health. वाह! बहुत ही अमेज़िंग जज़्बा था आपका और वो आज भी बरकरार है क्योंकि आप लोगों की इतनी सेवा करते हैं। तो व्हाट मोटिवेटेड यू अविनाश जी? आपने 1986 में यूएस आने का फ़ैसला किया। सो ये डिसीज़न कैसे लिया? और इसने आपकी लाइफ़ और करियर को कैसे इम्पैक्ट किया? एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में जब मैं था तो करीब 2 साल तक काम किया। उसके बाद जब एमडी कर लिया मेडिसिन में, तो उसके बाद मेरा बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होने लगा, एक जगह से दूसरे जगह, और उस समय बहुत चैलेंजिंग हो गया। और I came to USA to further my medical career and learn more and learn new techniques. And this is the best healthcare in the anywhere you can get in the world. And I learned a lot. Okay, great. So, how was adjusting in the यूएस in the 1980s? उस समय कैसा एक्सपीरियंस था आपका यूएस में? It was a cultural shock, but the day I landed, next day we have to clear a lot of examination to get into residency program, and I started. I hit the ground running, and I went and started my studies, and I competed. Cleared my exams, and then I applied for residency, got residency, and I started till I got residency. I was working at $4.50 an hour as a phlebotomist, and then after a month and a half, I got promotion, and I got $6 an hour in Bronx, New York, as a auto analyzer in the lab. So till I did that till I get my residency in Methodist Hospital in Brooklyn. Awesome. So, Avinash ji, what has been the most rewarding part of your career? Like, you are the chief of cardiology. So, what has been the most rewarding aspect of this? The again because I did well, I was able to help other people back home. We basically got our
medical education for free. It was like 12.5 rupees for tuition and 12.5 rupees for the hostel. So 25 rupees a month. So when we did well here, we thought that we should give back to the community, which gave us so much. So that's when, and because I had worked in the rural areas, so that's when we started helping out people back home. And that was the motivation. And as a chief of cardiology, I see that, heart attacks happen in Indians 10 years earlier than the other population. And the other population has to have risk factors. But for us, we get heart attacks and strokes even without risk factor. But nothing happens in this world for nothing. So if you dig deep, you'll find something. So it is very, I think because I am able to detect early the signs of heart disease and I can prevent it. So that was the most rewarding and fulfilling thing in my career, I would say. Amazing. So, Avinash ji, you talked about Indians getting heart attack 10 years early in their life. So, any tip or anything that you would like to share ताकि लोग अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें, any early signs that they can, recognize? Yeah, it's my passion to prevent anybody who calls me to talk about this. I run because even if you nowadays we have to take care of the risk factors. Like you have to see a doctor, you have to get your blood pressure, cholesterol, sugar checked, maintain an ideal weight with diet and exercise, and don't smoke. And nowadays there are two other tests you can do. One is a coronary calcium score. Everybody should get it above age 35 in male and 40 in female. And that will tell you your risk of future cardiac events. And also there are some advanced, everybody gets lipid profile, cholesterol check, but there is advanced lipid testing you can do. And basically don't ignore any symptoms and get checked, because it's very heartbreaking when I was president of Bajana and we are in a WhatsApp group, and almost every month or every other month we have a Indian in early 40s die of a heart attack, leaving behind his wife and 2 kids, and then we have to start a GoFundMe. So I said, why do we have to do that? We can prevent it. So I always talk about it, any opportunity I get. Yeah. Avinash ji, this is amazing that you are doing so much to prevent heart attack and spread awareness about how to take care of health, especially for Indians. So now I will talk about some of your community service work. आपने 2008 में डॉक्टर अविनाश गुप्ता फाउंडेशन की शुरुआत की. So can you tell us about its goals and what was the inspiration behind it? As I said, when I did well here, I always thought of giving back to the community, both here in the community where I work, like my Karm Bhumi, and also to the Matru Bhumi, which we left behind and which gave us so much. So I started this Dr. Avinash Gupta Foundation, and our goal was mainly to work in the field of health and education. And for education, I couldn't open a school or do anything like that. But what I did was I went to all my schools where I studied, like St. Alois, St. John's, St. Xavier's, and then Rajendra Medical College, and established scholarships and made the principal in charge of who will get it. Poor but meritorious students who otherwise cannot further their studies. So that's what we did in field of education. And in healthcare, when I was president of Bihar Jharkhand Association of North America, we got a big donation from Ramesh and Kalpana Bhatia Family Foundation. And the Bajana
gave it to Pran. Pran is Pravasi Alumni Nishulk. So they named the Pran Clinic as Pran Bajana Clinic. And with the support of this family foundation, we bought a Medivan and 2 ambulances, one in Patna, one in Ranchi. And there is a association called ASHA, Association of Social and Human Awareness, in Ranchi, which takes care of the orphan children and also the children rescued from human trafficking or child labor. And we went there, we saw that, they are NGO which is doing great work, and they have FCRA. So we were able to support them from here because they could get foreign funds. And also we trained them. And now whenever we go to Ranchi, we take their staff and the children, the older children, and they help us in doing medical camps. We go to a remote area में निकल जाते हैं, गांव में जहाँ की कुछ नहीं है, वहां पर जाके कैंप सेटअप कर देते हैं और वहां पर 100, 200, 300 पेशेंट देखते हैं। सबका लैब्स करते हैं, एक लैब टेक्नीशियन ले जाते हैं, सबको एग्जामिन करते हैं। पुर्जा में दवाई 1 महीना का दवाई फ्री में देते हैं। फिर उसका जब ब्लड टेस्ट आता है तो हम लोग के पास एक फुल टाइम नर्स है, वो हम लोग को भेजती है उसका लैब, फिर हम लोग उसको एडवाइस करते हैं। और हर आदमी के पुर्जा में उसका मोबाइल नंबर लिखा रहता है, और अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो उसमें मुखिया का नाम लिखा रहता है, मुखिया का नाम और नंबर। तो हम लोग उसको कॉल करते हैं, फिर उसका फॉलो अप करते हैं। तो अभी हम लोग 100 से ऊपर ज़्यादा कैंप कर चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा पेशेंट फॉलो कर रहे हैं, झारखंड और बिहार मिला के। अमेजिंग। तो आपका जो ये डॉक्टर अविनाश गुप्ता फाउंडेशन है, उसके बारे में मैंने पढ़ा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्यूचर प्लान्स हैं उसके, जैसे आप मिनी लाइब्रेरीज़ खोलना चाहते हैं और कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, रूरल एरियाज़ में। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? और उसका स्टेटस क्या है, यानी प्रोग्रेस स्टेटस? हाँ, अभी तो वो नेक्स्ट इनिंग्स होगा। अभी तो वो सब शुरू नहीं कर पाए हैं। उसके लिए तो इट्स वेरी चैलेंजिंग टू फाइंड प्रॉपर पीपल हु आर डेडिकेटेड and who are going to work for selflessly. So that's our next plans, which we have not started yet. Right now, we are just doing in the field of health and education. The other things will start once in the near future. ओके, आई एम श्योर लोग मिल जाएँगे आगे भी जल्दी, क्योंकि बहुत नेक काम है ये, तो देर तो होगी लेकिन होगा ज़रूर। सो अविनाश जी, आपको वहाँ के लोकल ऑर्गनाइज़ेशंस का क्या सपोर्ट मिलता है आपके डॉक्टर अविनाश गुप्ता फाउंडेशन को रन करने के लिए? वो बजाना का काफ़ी सपोर्ट है, बिहार झारखंड यहाँ से, और वहाँ से आशा का सपोर्ट है। वहाँ पर एक आशा संस्था जिसके बारे में बताया, एनजीओ, वो उसके अजय कुमार जायसवाल हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं वो और उनका पूरा स्टाफ। ओके, सो अब मैं थोड़ा बहुत कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में बात करना चाहूँगी। उस दौरान आपने अपनी वाइफ के साथ मिलकर टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। तो कैसे ऑपरेट किया था वो, यहाँ से बैठे इंडिया में लोगों का इलाज और हेल्प, और क्या चैलेंजेस आए आपको? दैट टू वाज वेरी चैलेंजिंग टाइम्स। वो तो पता नहीं था कि कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा। और इंडिया से पैनिक में लोग कॉल करते थे, क्या कि यहाँ पर फर्स्ट वेव बहुत बुरा था, लेकिन वहाँ पर फर्स्ट वेव उतना बुरा नहीं था। सेकेंड वेव बहुत बुरा हुआ वहाँ। तो चूंकि वो लोग सोचते थे कि हम लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो लोग कॉल करते थे कि भाई क्या करें। उन लोग को समझ नहीं आता था कब हॉस्पिटल जाना है, नहीं जाना है, क्या दवा लेना है, नहीं लेना है। ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे, तो रोज कॉल आता था। तो उस समय मैं फॉर्चुनेटली बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का प्रेसिडेंट था, तो हम लोगों की रोज मीटिंग होती थी सुबह 11 बजे। तो मीटिंग कर रहे थे, तो हम बोले भाई तुम लोग आईटी फील्ड में तुम लोग बहुत तेज हो और हम तो डॉक्टर हैं, हमको तो नहीं आता है, तो तुम ऐसा कुछ क्लिनिक सेटअप कर सकते हो जिससे कि हम लोग वहाँ के लोगों की मदद कर सकें। So I could not believe it कि same day at 9:30 in the night we started our Zoom clinic, and the Zoom clinic was set up by Bajana volunteers, the high school students,
children of all these committee members. And जूम में 10 ब्रेकआउट रूम होते थे, तो हम लोग एक डॉक्टर को वो लोग एक रूम में भेज देता था, वहां पर इंडिया से पेशेंट और उसकी फैमिली आ जाती थी, तो प्राइवेसी मेंटेन रहता था। और उसके बाद हम लोग 9:30 बजे से शुरू करते थे 1 घंटा का, लेकिन वो रात को 1 बजे तक चलता था और रोज ऐसा चलता था। सो मच सो दैट NBC heard about it. They came to my house and they saw us doing this Zoom clinic. They filmed it. There was a 4-5 minute uh, clip on the evening news, MSNBC and CNBC. And then it spread all over the country. Then I started getting calls from all over the country that we want to participate. So the Zoom clinic became worldwide, and we help people from England, from Australia, from all over the world, of course, from all parts of India. And we raised funds and we sent oxygen concentrators and PPEs so that and we advise them when not to go to the hospital. So don't clog the hospital, leave the hospital for serious patients. So it was a very rewarding and fulfilling experience. अमेजिंग। एंड अविनाश जी, मैंने भी देखा था वो एनबीसी वाला वीडियो आपका। तो आई नो कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आपके कुछ पर्सनल लॉसेस भी हुए थे फैमिली में, पर उसके बावजूद भी आपने लोगों को हेल्प करने का प्रयास जारी रखा। तो क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे? और इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी आप लोगों की हेल्प करने से कतराए नहीं? मोटिवेशन तो हम सबको ये बोलते हैं कि इफ यू आर से डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा तो यही है कि गो इन योर टाउन एंड लुक फॉर पीपल हु नीड हेल्प देम आउट। उससे जो खुशी मिलेगी इट्स वेरी फुलफिलिंग एंड रिवार्डिंग। एंड तो वसुधैव कुटुंबकम यही हम लोग का थीम भी है इस साल का इंडिया डे परेड का। तो वर्ल्ड इज वन फैमिली, सो नो मैटर वेयर यू आर, यू कैन हेल्प अदर पीपल and spread love and happiness all around. तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ भी हम लोगों ने मोकापी के भी हम प्रेसिडेंट थे उस समय, मनमोहन काउंटी एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ऑरिजिन, और उसके डॉक्टर्स को मैंने मोबिलाइज किया और हम लोग ओशन काउंटी हेल्थ डिपार्टमेंट में जाकर हर सैटरडे हर संडे को हजारों लोगों को कोविड का वैक्सीन दिया हम लोगों ने फ्री में। तो वो भी बहुत अच्छा। हम लोग को न्यू जर्सी के स्टेट लेजिस्लेचर ने प्रोक्लामेशन से सबको रिकॉग्नाइज किया और ऑनर किया। अच्छा, ओके। वसुधैव कुटुंबकम, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है। आई होप दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा सोचें कि वर्ल्ड इज़ वन। एंड अविनाश जी, अब मैं थोड़ा पूछना चाहूँगी, जैसे आपने टेलीमेडिसिन के थ्रू इंडिया में लोगों की इतनी सहायता की कोविड-19 के दौरान, तो हाउ डू यू सी कि इसका क्या योगदान है टेलीमेडिसिन के थ्रू हम रूरल एरियाज़ में और कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों की? इसका फ्यूचर क्या है? टेलीमेडिसिन हैज ग्रेट फ्यूचर। आपको हम बताते हैं, जैसे बिहार में कोई रूरल एरिया में या कहीं भी दूसरे टाउन में कोई बीमार पड़ गया, तो उसको लोग बोलते हैं कि तुम एम्बुलेंस में बैठ के पटना चले जाओ, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या था उसको, तो उसका हाइपोग्लाइसीमिया था, मतलब शुगर बहुत कम था। हुँ, तो उसका तो इलाज वहीं पर हो सकता था। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं स्मार्ट एम्बुलेंस, स्मार्ट क्लिनिक एंड स्मार्ट आईसीयू। तो हम लोग एम्बुलेंस में जो पैरामेडिक्स हैं उसको यहाँ से एडवाइस करेंगे कि तुम उसका ब्लड शुगर चेक करो और देखो, अगर उसको तुम एक ग्लास ऑरेंज जूस दे दो शुगर मिला के, तो वो ठीक हो जाएगा, उसको ले जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पटना। तो उसी तरह से आईसीयू में भी बहुत खर्च होता है, एक दिन में ₹1,00,000 खर्च हो जाता है, हम लोग उसको ₹1,500 में करने की कोशिश करेंगे। और उसी तरह से क्लिनिक का मॉडल है कि ₹600 में कोई एनरोल कर लिया, तो उसको हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और वहाँ पर स्टाफ रहेगा जिसको 20,000 ₹30,000 देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर वहाँ से एनफ सब्सक्रिप्शन आ गया तो। एक डॉक्टर रवि रंजन है, उनका ये प्रोजेक्ट है, तो हम लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं।
और हम लोग का प्राण बजाना का क्लिनिक तो टेलीमेडिसिन से चल ही रहा है। तो टेलीमेडिसिन इज द फ्यूचर। रूरल एरिया में जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आजकल टेलीमेडिसिन से बहुत कुछ हो सकता है। जी, बिल्कुल। अब मैं बजाना के बारे में पूछना चाहूँगी। आप बजाना के प्रेज़िडेंट रह चुके हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये बजाना ऑर्गनाइज़ेशन क्या है और इसके क्या गोल्स हैं? ये बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ट्राई स्टेट एरिया के सभी बिहारियों और झारखंडियों का ऑर्गेनाइजेशन है। ये 50 साल का होने जा रहा है। अगले साल इसका 50वां हाँ। एनिवर्सरी हम लोग मनाने जा रहे हैं, बहुत ग्लोबल बजाना करके। वर्ल्ड के सभी जगह से बिहार और झारखंड के लोगों को बुलाया जाएगा। जी। न्यू जर्सी में होगा ये। तभी हमारे प्रेसिडेंट संजीव सिंह हैं, उसमें जोर शोर से लगे हुए हैं। तो ये क्या है कि प्रेसिडेंट हम जब बने थे उस समय हम लोग केवल होली, दिवाली, छठ और समर पिकनिक करते थे। हमारे प्रेडिसेसर्स ने छठ शुरू किया था। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, वो सब तो कर रहे हैं, अब ये जरूरी है अपना कल्चर और हेरिटेज से जुड़े रहना, लेकिन हम लोग को कुछ फिलैंथ्रोपिक वर्क का, कुछ कम्युनिटी सर्विस भी करना चाहिए। तो उसी समय बजाना इन्वॉल्व हुआ प्राण क्लिनिक से। प्राण बजाना से, टेलीमेडिसिन से लोगों का इलाज हो रहा है, फ्री में दवा बट रही है। और ऑल्सो वो एनजीओ के जो अनाथ बच्चे हैं उनको हेल्प हो रहा है। पटना में एक अंतर ज्योति बालिका विद्यालय है, चिल्ड्रन ब्लाइंड चिल्ड्रन का स्कूल है, उसको हम लोग हेल्प कर रहे हैं। एक पटना में कारा मेडिकल फाउंडेशन है जो कि रिहैबिलिटेशन करता है, डिसेबल्ड को व्हील चेयर बांटता है। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक न्यूरो सर्जन है, वही चला रहे हैं उसको। व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, सब डिसेबल्ड लोग के लिए फिजिकल थेरेपी सब करते हैं। और उसको यूनेस्को से भी रिकॉग्निशन मिला है। तो हम लोग बजाना से काफ़ी ये सब काम करने की कोशिश करते हैं। समर कैंप चलता है बजाना का। बजाना के बच्चे, सबसे अच्छी बात है कि बजाना के बच्चे, इंडिया के बच्चे उनको पढ़ाते हैं वीकेंड में, ज़ूम पर। और पढ़ाते तो हैं उन लोग को इंग्लिश, लेकिन ये लोग भी हिंदी सीखते हैं उन लोगों से। ये लोग देखते हैं कि भाई हम लोग के पास तो सब कुछ है, सब हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन वहाँ के बच्चों के पास क्या है और कैसे वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है उसका। बहुत ही सराहनीय काम कर रही है बजाना बिहार और झारखंड के लोगों के लिए। बहुत ही अमेज़िंग है। तो अब मैं थोड़ा एफआईए के बारे में पूछना चाहूँगी। अविनाश जी, आप करंट प्रेज़िडेंट हैं अभी एफआईए के। तो इस ऑर्गनाइज़ेशन का क्या गोल है और इसका विज़न क्या है? तो चूँकि मैं यहाँ पर सिद्धिविनायक टेम्पल है टॉम्स रिवर में, उसका चेयरमैन था और अभी भी हूँ। और भी बजाना का प्रेसिडेंट था, फिर मोकापी का प्रेसिडेंट था। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन एफआईए के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थे। एफआईए इज द लार्जेस्ट ग्रास रूट्स अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इन द नॉर्थ ईस्ट। 8 स्टेट्स को कवर करता है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट एंड नॉर्थ इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड। तो हम लोग का काम है इंडियन डायस्पोरा को सपोर्ट करना और अमेरिका और इंडिया, इंडो यूएस रिलेशंस को एनहांस करना, और इंडियन डायस्पोरा को जो भी प्रॉब्लम हो उसको कॉन्सुलेट तक लाना। और उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, वीज़ा का, पासपोर्ट का, डोमेस्टिक वायलेंस का, तरह तरह की कॉल आते हैं। किसी स्टूडेंट आया हुआ है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है। आपने सुना ही होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया या किसी का मर्डर हो गया। तो हम लोग सभी में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कोई भी यहाँ के लोकल सेनेटर्स, लॉ मेकर्स, कांग्रेसमैन से मिलते हैं। इंडियन कम्युनिटी का जो भी इशू होता है या इंडो यूएस रिलेशनशिप्स का जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन है, उसको डिस्पेल करने का कोशिश करते हैं। तो काम तो यहाँ बहुत है। और काफ़ी हमारी टीम जो है एफआईए की, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है और एग्जीक्यूटिव कमिटी है, सभी सब वॉलंटियर हैं और सभी सेल्फलेसली काम करते हैं। और काफ़ी हम लोग के चेयरमैन है अंकुर वैद्य, इज वेरी यंग, डायनामिक एंड विजनरी, एंड ही इज आवर गाइड।
वाओ! एफआईए बहुत ही अमेज़िंग काम कर रही है इंडियंस को यहाँ यूएस में सपोर्ट करने के लिए और उसी तरह से आई थिंक बजाना भी बिहार, झारखंड के लोगों के लिए एक वरदान है, जो अपना देश छोड़कर विदेश आते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है जो बहुत ही कमेंडेबल है। अ, तो एफआईए के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगी अविनाश जी कि इसको बाकी लोकल ऑर्गनाइज़ेशन से कैसे हेल्प मिलता है? और ये इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या काम करता है? तो हम लोग काफ़ी इवेंट होल्ड करते हैं जो ये इंडियन कल्चर और हेरिटेज को बनाए रखने के लिए, सो दैट द इंडियंस गेट connected to India and gets connected to its roots. तो हम लोग शुरू करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसमें डांस पे चांस एक इवेंट करते हैं। तो डांस पे चांस एक्चुअली सुन के लगता है कि कुछ बॉलीवुड डांस है, लेकिन इसमें हमारे स्टूडेंट्स, यूथ, माइनर कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी में, सीनियर कैटेगरी एंड अडल्ट कैटेगरी में परफॉर्म करते हैं। तो ये इंडियन डांस फॉर्म्स को सीखते हैं और स्टेज पर देते हैं, स्टेज फ्राइट चला जाता है उनका। देयर आर 30 डांस एकेडमीज which participate. There are 1800 audience and it's an amazing event. And I have seen that जो बच्चे आते हैं उसमें कितना हार्ड वर्क करते हैं, डिटर्मिनेशन रहता है और स्टेज पर हेल्दी कंपटीशन होता है। it helps them in their life. No matter what they do in their future life, they succeed. तो ये बहुत अच्छा इवेंट है। उसके बाद हम लोग कोई भी स्टेट का स्थापना दिवस जो होता है, जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कॉन्सुलेट में, जैसे बिहार दिवस, झारखंड दिवस, गुजरात महाराष्ट्र डे, ये सब करते हैं। मार्च 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो उस दिन हम लोग हमारे कम्युनिटी के जो वुमेन ऑफ एक्सेप्शनल वुमेन को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट ये डांस पे चांस समझिए कि यूथ एम्पावरमेंट है या ये वुमेन एम्पावरमेंट है। और हम लोग एक कमेटी में 3 वुमेन हैं एफआईए की कमेटी में। तो अब सब कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग का फ्लैगशिप इवेंट तो आ रहा है, इंडिया डे परेड, which is the largest India Day parade outside India in New York City on Madison Avenue from 38th Street to 18th Street, 28th Street. And this is going to happen the day Sunday after the Independence Day. The Independence Day 15 अगस्त को है, उस दिन हम लोग टाइम्स स्क्वायर में फ्लैग होस्टिंग करेंगे। फ्लैग होस्टिंग पिछले 3 साल से कर रहे हैं अच्छा। और उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और उसमें कॉन्सल जनरल आते हैं और लोग सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन को बुलाते हैं। और उसके बाद उसी दिन शाम को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का लाइटिंग होता है ट्राई कलर से। और एक्चुअली दिवाली के दिन भी उसको दिया के कलर से उसको लाइट करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी। अब फिर इंडिपेंडेंस डे के परेड जो होता है उसके बाद शाम को गाला करते हैं। अमेजिंग इंडिया डे परेड के बारे में तो हम सभी इंडियंस वेट करते हैं साल भर कि कब आएगा इंडिया डे परेड और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की लाइटिंग तो हर हर साल हम देखते हैं कि 15 अगस्त और दिवाली में इंडिया के हिसाब से उसकी लाइटिंग चेंज होती है जो बहुत ही अमेजिंग है। आई जस्ट वांट टू नो अविनाश जी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई क्योंकि सभी को पता है कि ऐसा होता है पर कोई नहीं जानता कि इसके पीछे की कहानी क्या है। ये हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है जब एम्पायर स्टेट में हम अपने इंडियन ट्राई कलर फ्लैग देखते हैं तो सभी गर्व से भर जाते हैं पर किसी को इसके पीछे की कहानी नहीं पता कि इसके लिए क्या मेहनत है कैसे आप लोग काम करते हैं इसके पीछे। हाँ, तो इसके पीछे वही हमने बताया कि जो हमारे चेयरमैन हैं और हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये सब बिहाइंड द सीन्स बहुत काम करना पड़ता है। हम लोग का जैसे इंडिया डे परेड का जिस दिन परेड खत्म होगा उसके दूसरे दिन से अगले साल के परेड की तैयारी शुरू हो जाती है। Oh my न्यूयॉर्क सिटी से मल्टीपल परमिट्स लेने पड़ते हैं अच्छा। और उसके बाद उसका इसका बजट भी काफ़ी होता है, तो सभी स्पॉन्सरशिप लाते हैं, हम लोग को म्यूचुअली बेनिफिशियल रहता है। और फिर उसके बाद फ्लोट्स रहते हैं, 40 से ज़्यादा फ्लोट रहते हैं। तो हम लोग का जैसे इस साल का थीम है वसुधैव कुटुंबकम,
वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि भारत के सभी स्टेट्स पार्टिसिपेट करें, सभी एथनिक ग्रुप्स पार्टिसिपेट करें। पिछले साल जम्मू कश्मीर का फ्लोट आया था पहली बार, इस बार भी आएगा। इस बार का हाईलाइट हम लोग को रहेगा राम मंदिर फ्लोट, बहुत टाइमली है, और उसमें 500 राम भक्त चलेंगे दोनों तरफ, और सबको, सब स्पॉन्सर्स को एक पूजा बॉक्स दिया जाएगा रामलला की मूर्ति के साथ। हम लोग तो FIA तो नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, बट वी वेलकम ऑल रिलीजन्स एंड ऑल ethnic groups to come and participate in the parade, because India is diverse but it's united, and that's what we are celebrating. तो इस बार सेलिब्रिटीज आएंगे, तो अभी इन कमिंग वीक्स हम लोग कर्टन रेजर करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्सुलेट में ही, उसी में सब अनाउंस होगा कि कौन सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और क्या क्या हाइलाइट्स है। क्या बात है! आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया डे परेड और अभी से ही काफ़ी एक्साइटमेंट है। सभी इंडियंस में होता है हर साल। इस साल कुछ और भी बड़े पैमाने पर हो रहा है जो बहुत ही एक्साइटिंग है। तो अविनाश जी, हमें थोड़ा सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में बताइए। आप उसके चेयरमैन हैं और आपने इसका निर्माण कैसे करवाया और इसके पीछे की क्या कहानी है? कैसे सूझा यहाँ मंदिर बनवाने? हाँ, तो FIA का एक तो हमने बताया कि परेड होगा, उसी दिन शाम को गाला भी होगा। इस बार का गाला हम लोग नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन इंडियन में होगा, बहुत एलिगेंट लोकेशन है। परेड के बाद 12:30 से 2:30 परेड होता है, उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम होगा वहीं 28 स्ट्रीट पर। और काफ़ी आप पैट्रियोटिक ड्रेस पहन के आइए, कंपटीशन होगा, पानी पूरी कंटेस्ट होगा। आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इंडियन ट्रेडिशनल अटायर में आइए। और तो वो तो हो गया FIA की बात। सिद्धिविनायक टेम्पल के बारे में आपने पूछा, तो a town without a temple is like a house without a light. तो मंदिर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पर सभी लोग जमा होते हैं, अपना कल्चर फेस्टिवल को साथ में सेलिब्रेट करते हैं। सो दोज फैमिली विच ईट टुगेदर, स्टे टुगेदर, सेम वे द कम्युनिटी विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो और फिर हमारे पेरेंट्स आते हैं इंडिया से, सब हम लोग तो काम पर चले जाते हैं, वो लोग लोनली फील करते हैं, तो वो सीनियर सिटीजन्स वहाँ जाके मिल सकते हैं एक दूसरे से। तो हम लोग के टाउन में कोई मंदिर नहीं था, और बात बहुत दिन से चल रही थी कि मंदिर होना चाहिए, क्योंकि women have to take their children like 50 miles north or 50 miles south to a temple, and it's not possible for working women. And every woman is a working woman, even if she works at home, that's a working woman. तो हम लोगों ने सोचा कि ये मंदिर होना चाहिए। हम लोगों ने फंड रेज किया, एक जमीन अक्वायर किया 6 एकड़ का, और उसमें फिर एक मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर, जो बॉम्बे का एग्जैक्ट रेप्लिका है। और वहाँ पर आपको दर्शन में बहुत भीड़ भाड़ होती है, लेकिन यहाँ बहुत शांतिपूर्वक दर्शन होता है। तो इससे काफ़ी हम लोग का कम्युनिटी में सब कोई यूनाइटेड है, और काफ़ी सब एंजॉय करते हैं। इट इज सर्विंग द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नीड्स, एंड इट्स ओपन टू एवरीबॉडी, इवन द अमेरिकन्स कम एंड they learn about our culture and about our religion. ये बहुत ही अमेजिंग सोच है आपकी इस मंदिर के निर्माण के पीछे की और मैं गई हूँ इस मंदिर में। बहुत ही भव्य और बड़ी शांति मिलती है वहाँ पर जाने से, बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो अब मैं कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी अविनाश जी। आपके काम के अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं? काम के अलावा कुछ और समय नहीं मिलता है कुछ करने का। तो फिर भी ये तो हो तो क्या करना पसंद आप यही सोचिए कि 2012 तक जब मंदिर बनाना शुरू किया, उसके पहले तक तो मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से हॉस्पिटल, यही करता था। लेकिन ये है कि मैं उनको किताब पढ़ने का बहुत शौक है, जो कि बहुत दिन से पढ़ नहीं पाए हैं। अभी किताब तो खरीद खरीद कर सब रखा हुआ है, उसको है? पढ़ने की कमी है।
और ट्रैवल करने का शौक है, तो ट्रैवल भी जब भी मौका मिलता है तो चले जाते हैं। और क्रिकेट का शौक है, अभी कल फाइनल देखेंगे। हाँ, बिल्कुल, अभी इंडिया-पाकिस्तान मैच हुआ था, मैं भी गई थी देखने। इंडिया यूएसए भी देखने गई थी। हाँ, मैंने भी तीनों मैच देखा यहाँ पे। अरे! बहुत अमेज़िंग एक्सपीरियंस था। तो आपको टीवी और फ़िल्में देखने का शौक नहीं है? शौक है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। हुँ। तो कभी-कभी देख लेते हैं, जब वाइफ़ के साथ कभी-कभी बैठ के देख लेते हैं। तो आप इतना कुछ काम कैसे मैनेज करते हैं? आप अपने मेडिकल प्रोफ़ेशन के साथ-साथ एफआईए के हेड हैं और भी कितने सारे फाउंडेशंस हैं, चैरिटेबल एसोसिएशंस हैं जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। आप कैसे मैनेज करते हैं ये सब? व्हाट कीप्स यू गोइंग? आपका कोई मंत्र है? तो वही मंत्र है, एक तो मल्टीटास्किंग करना होता है और दूसरा कि यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। इफ यू ऑर्गेनाइज्ड, लोग बोलते हैं कि हमको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि तुमको खाने का टाइम है 3 बार, तो अगर 3 बार खाते हो तो एक्सरसाइज करने का भी टाइम निकाल सकते हो। उसी तरह से और कुछ आदमी को योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी करना चाहिए। उससे क्या होता है कि माइंड स्टेबल रहता है, शांत रहता है, और you get organized, and your day goes well, and you can achieve more in the same time. तो इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज के साथ-साथ थोड़ा मेंटल स्पिरिचुअल के लिए भी आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम जो भी कर सकते हैं, करना चाहिए सबको। आई नो आजकल लोगों की फ़ास्ट लाइ और बिज़ी लाइफ़ में सबकी यही कंप्लेन है कि टाइम नहीं मिलता। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, आप सबके पास टाइम है, बस थोड़ा अपने आप को ऑर्गनाइज़ करने की ज़रूरत है। प्रायोरिटीज़ के हिसाब से टाइम निकालना पड़ता है। कोई यहाँ पर कुछ सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि जिनके पास टाइम की कमी है, तो वो कैसे अपने हेल्थ और वेल बीइंग के लिए कुछ कर सकते हैं? मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि 90 टू 100 इयर्स ओल्ड हैं। तो वाह! मैं सबके साथ अब सेल्फी लेता हूँ और सबसे पूछता हूँ कि भाई क्या सक्सेस है? क्या सीक्रेट है सक्सेस का? तो सब 3 आदमी 3 चीज़ ज़रूर बोलता है सब। दे आर हैप्पी, हुँ, दे आर कंटेंट विथ व्हाट दे हैव, uh, and they exercise daily. I see that the 90-year-old goes to gym every day, cooks her own food, does her own grocery, drives to the office. So exercise is very important, and keep healthy. And the uh, God has given us enough, and we should not. Basically, we should be happy and content with what we have. If we bite more than we can chew, then that's a problem. तो बहुत उसके बाद फिर हम लोग एंग्री हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, तो इसलिए वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट वी हैव। बहुत बड़ी बात कही आपने, संतोषम परमम सुखम, हाँ, सुना है मैंने। हाँ। जी। ओके, तो अविनाश जी आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, बोथ इंडिया, यूएस, हर जगह आपको रिकॉग्नाइज़ किया गया है आपके ग्रेट वर्क के लिए। तो ये अवार्ड्स और ये रिकॉग्निशन आपके लिए क्या मायने रखते हैं? हाँ, जब जैसे माने यही रखता है कि आदमी को काम तो करना चाहिए सेल्फलेसली और विदाउट नाम के लिए। हम लोग के मंदिर में भी जो लोग दान देते हैं, तो बोलते हैं कि हमको एनोनिमस रहने दो। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, नाम होना चाहिए, उससे 2 फ़ायदा होता है। एक तो कि दूसरे लोग को मोटिवेशन होता है कि हम भी करें कुछ अच्छा काम। तो इसी तरह से जो अवार्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, उससे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम भी करें ऐसा। तो और हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे ज़्यादा काम कितने लोग कर रहे हैं दुनिया में, और हम लोग को भी अगर सभी हेल्प करें, तो काफ़ी कुछ हो सकता है मिल-जुल के। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो चलते-चलते अविनाश जी कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने झारखंड और यूएस के इतने लंबे सफ़र में आपने इतना कुछ अचीव किया है, इतना कुछ किया है लोगों के लिए, समाज के लिए। और आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? अपने लाइफ लेसन्स? मैं तो जो फॉलो मैं आई मीन यू शुड ओनली प्रीच व्हाट यू फॉलो और व्हाट यू प्रैक्टिस।
तो मैं जो फॉलो करता हूँ वही बोल सकता हूँ कि ग्रेटफुलनेस is a very big virtue which not everybody has, but be grateful to people who have helped you reach this stage in your life. तो उससे क्या होगा कि आप दूसरे के लिए कीजिएगा, अब वो दूसरा फिर तीसरे के लिए करेगा, आपके लिए नहीं करेगा कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के लिए करेगा। तो इस तरह से चेन रिएक्शन को बढ़ाते जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने अविनाश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जो भी हमारे देश के लिए और देश के बाहर इंडियंस के लिए कर रहे हैं, वो सच में सराहनीय है। थैंक यू सो मच। इट वाज़ एन ऑनर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। आपका तो प्रोग्राम का नाम ही गुड वाइफ शो, तो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए तो लोगों को काफी इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। यही हम लोग का गोल रहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अविनाश जी। नमस्ते। Thank you to all our listeners for joining us on this inspiring journey with Dr. Avinash Gupta. Stay tuned for more uplifting conversations on The Good Vibe Show. And remember, positivity and dedication can truly change lives.